हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अ ट्रेट फॉर मस्कीटोज पार्ट 3, मच्छरों की दावत। इससे पहले हमने देखा था कि मलेरिया की जांच, खून टेस्ट और एनीमिया के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। उसमें बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, जसकीरत, रजत, आरती, नैन्सी। फाइंड आउट, पता करो। आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। बेबी मस्कीटोज, मच्छरों के बच्चे। इसमें बोल रही है जसकीरत, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, एवरीवन गोज आउट टू लुक। जसकीरत ने कहा, मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। तो क्या होगा, सभी बच्चे उस पोस्टर को देखने के लिए पहुँचे। पोस्टर कौन सा था? उनकी क्लास के सामने से तो आर यू इन्विटिंग मस्कीटोज, बीवेयर, दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। पोस्टर में लिखा था कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। आसपास पानी इकट्ठा जमा नहीं होने दे, गड्ढा को भर दे। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर की साफ रखो, हर हफ्ते सुखाए। यूज मस्कीटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वे, व्हाट आर दोज। रजत ने कहा, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? नैन्सी, दे आर बेबी मस्कीटोज बट दे डोंट लुक लाइक मस्कीटोज एट ऑल। नैन्सी ने कहा, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। इस वीडियो में हम वही लार्वे यानी मच्छरों के छोटे बच्चे देखेंगे। इसकी साइकिल कैसी होती है। Cycle of a mosquito. The mosquito's life cycle starts with laying eggs. It lays eggs on stagnant water and other containers that can hold water, such as discarded tires, cans, buckets, etc. The female mosquito lays small cigar-shaped eggs which are soft and white. Most species lay eggs that are stuck together in rafts of 100 or more eggs. Normally, the eggs are white when first deposited, then darken to near black within a day. They will hatch in 1 to 3 days depending on the temperature.
When the larvae are ready to hatch, they use a small temporary tooth on their heads to break open the egg along a suture. Larvae swim either through propulsion with their mouth brushes or by jerky movements of their entire bodies, giving them the common name of wigglers. Most species of mosquito larvae spend most of their time hanging upside down on the surface, sucking in oxygen through a siphon tube used for breathing. They also have an abdomen, thorax, and eyes. The larvae must live in water from 7 to 14 days depending on water temperature. Larvae shed their skin 4 times, after which they become pupae. Mosquito pupae are commonly called tumblers, which is a resting non-feeding stage. They must take in oxygen from time to time through 2 breathing tubes known as trumpets. They have short, curved bodies with antennae, eyes, legs, wings, and an abdomen. The pupal skin splits along the top of the case when the adult mosquito is ready to emerge from the pupae stage. The adult mosquito slowly and carefully works its way out of the pupal case. The newly emerged adult rests on the surface of the water for a short time to allow itself to dry and all its parts to harden. The wings also need to spread out and dry properly before the mosquito can fly. Adult mosquitoes are made up of a head with 2 large compound eyes, a thorax, and a pair of scaled wings. इस वीडियो में हमने देखा कि जो पानी रहता है टायरों या कूलरों या टंकी में या कोई भी पुराने घड़े में जिसमें मच्छर अंडे देते हैं और उससे ही फिर लार्वे बनते हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम? आरती ने कहा, तुमने कहाँ देखी? नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लेइंग बिहाइंड आवर हाउस. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some teeny thread like grey things swimming. I was surprised when Mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. They are called larvae. I also heard something about this ऑन द रेडियो. नैन्सी ने कहा, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों में पानी भरा पड़ा था. उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई. मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं. तो मम्मी ने बताया कि उन्हें क्या कहते हैं? लार्वे कहते हैं. ये जो इस बॉटल में है ये क्या है? लार्वे. इसे क्या कहते हैं? लार्वे. रजत, व्हाट डिड यू डू? फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर. ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट and kept it upside down so that no water would collect. नैन्सी ने कहा, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया. जसकिरत, Shaijia auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problems. जसकिरत, मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी. रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीजेज? रजत ने कहा, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? साइंटिस्ट peeps into a mosquito's stomach.
मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिकों की जुबानी। देखिए, यह है वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस। अब मैं आपको इसका सिर्फ हिंदी में मीनिंग बताऊंगा। इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरों की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। अब मैं सीधा ही मीनिंग बता दूँगा हिंदी में। उस समय मलेरिया ये बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था ये जीवाणु खून में कैसे पहुँचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया था। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चूसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियाँ देखते देखते शाम तक आंखें धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं चला सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छाटेदार थे। उनमें से एक मच्छर के पेट में देखते देखते कुछ काला काला से दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। देखिए, भारत में भी ये पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार 9 व्यक्ति को मिला है अभी तक। जो हम साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं उनका नाम बताइए और उन्हें किन क्षेत्र में पुरस्कार मिला है ये भी बताना। जैसे रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। बायोग्राफी मान्य सर्वे रोनाल्ड रॉस जीवनी रोनाल्ड रॉस 13 मई 1857 16 सितंबर 1932 एक ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज विजेता थे। उन्हें 1902 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए दिया गया। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ। उनके पिताजी का नाम सर सीसी रॉस था। वे ब्रिटिश आर्मी में जनरल थे। रोनाल्ड की उच्च शिक्षा लंदन में हुई। गणित के साथ साथ उनकी रुचि कविता और संगीत में भी थी जब से सिर्फ 16 वर्ष थे।
उन्होंने ड्राइंग प्रतियोगिता में कैम्ब्रिज से प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन 1881 को वे मेडिकल सर्विस में दाखिल हुए। उनकी पहली नियुक्ति मद्रास में मेडिकल ऑफिसर के पद पर हुई। उस समय भारत में मलेरिया की बीमारी के बहुत सारे मामले सामने आते थे, अतः 1892 में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर मलेरिया पर अपना पूर्ण रूपेण शोध कार्य शुरू किया। 2.5 साल के कई असफल प्रयासों के बाद अंततः वह अपने प्रयासों पर सफल हुए। रोनाल्ड रॉस का जन्म 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में हुआ था। देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद वे अंग्रेजी राज की भारतीय सेना के स्कॉटिश अफसर सर कैंपबेल रॉस की 10 संतानों में सबसे बड़े थे। युवा रोनाल्ड की रुचि कवि या लेखक बनने की थी। उन्हें गणित की समस्याएं हल करने में मजा आता था। तब इंडियन मेडिकल सर्विस के अफसरों को बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं मिल पाता और वे मर जाते। 8 साल की उम्र में उन्होंने आइल ऑफ वाइट पर उसके चाचा और चाची के साथ रहने के लिए इंग्लैंड के लिए भेजा गया था। उन्होंने राइड पर प्राथमिक विद्यालयों में भाग लिया और माध्यमिक शिक्षा के लिए वे 1869 में साउथहैम्पटन के पास स्प्रिंग हिल में एक बोर्डिंग स्कूल के लिए भेजा। ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें 1902 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के खोज के लिए दिया गया। उनका जन्म 13 मई के रोज साल 1857 में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में। तो इस वीडियो में भी यही दिखा है कि उन्होंने कैसे मलेरिया के मच्छरों की खोज की, अंततः उसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। थैंक यू।